تو جو میرے روم میٹ تھے ہاسٹل میں وہ میرے کزن بھی تھے، میرے دوسرے روم میٹس بھی تھے، آؤٹ آف سٹی کے جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے وہ دوست اور بھی تھے۔ بعد میں وہ دوست ہی بن گئے تھے کیونکہ ظاہر ہے وہ روم میٹس تھے، لیکن وہ ایک ہی شہر کے تھے، جس شہر کے میرے کزن تھے آؤٹ آف سٹی کے، وہ سیم سٹی کے تھے۔ تو ان سے گھلنے ملنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا مجھے، کیونکہ ان کو میں تھوڑا پہلے بھی جانتا تھا پہلے سے بھی۔ تو وہ ایک آلریڈی ایک اچھا یعنی کہ جہاں پہچان تھی ان کے ساتھ۔ تو ان میں جو ایک میرا روم میٹ تھا اس کا نام خواجہ تھا، دوسرے کا نام شامیر تھا۔ تو اور اس میں روم میں خود تھا، یعنی کہ میں، شامیر اور خواجہ، ہم یہ تینوں رہتے تھے۔ دوسرے روم میں میرے باقی کزن رہتے تھے اور باقی روم میٹس رہتے تھے ان کے ساتھ۔ تو جو ہر کسی کا جو ہے وہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہے، خاص طور پہ ہاسٹل میں آ کے تو وہ پرسنالٹیز اور ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں۔ ہاسٹل میں جو انسان ہوتے ہیں وہ جانور بن جاتے ہیں، جو جانور ہوتے ہیں وہ جنات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو میرے ساتھ جو تھے وہ خواجہ تھا، اور ایک اور تھا جس کو میں آدمی بھائی کہتا ہوں پیار سے۔ آپ بھی جب کبھی ملتے ہیں تو اس کو آدمی بھائی کہتے ہیں۔ وہ آدمی بھائی کیوں کہتے ہیں تو وہ آپ کے کو بھی قصہ کسی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو اس روم میں صرف میں، خواجہ اور آدمی بھائی تھے۔ خواجہ کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہو سکتا ہے سینسر ہو جائے، یا ہو سکتا ہے وہی وہ کیس کر دے۔ تو جو خواجہ تھا وہ کوئی الگ ہی آئٹم تھا دنیا کا۔ وہ اس کا یہ سین تھا کہ جب سے وہ پہلے دن سے آیا تھا اس کو معلوم ہوا کہ یہ میرا روم ہے، یہ میرے روم میٹ ہے، یہ میں نے یہاں رہنا ہے۔ تو جو اس کا وہ ایک اور روم میٹ تھا جس کو میں آدمی بھائی کہتا ہوں، وہ اسی کے شہر کا تھا، وہ دونوں اکٹھے ہی آئے تھے، لیکن اس کے لیے میں جو ہے تھا وہ الگ تھا۔ اب جو ہے میری جو پرسنالٹی ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ تھی ان سے، کیونکہ وہ جیسے وہ پراپر قد کے، پراپر ہائٹ کے تھے، وہ پراپر ان کا بیلنس تھا، باڈی ان کی بیلنس تھی پراپر، جیسے وہ ایک نارمل انسان ہوتا ہے۔ اب میری تھوڑی ہائٹ زیادہ تھی، میرا تھوڑا باڈی بھی تھوڑا زیادہ تھی۔ اب اس نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی بڑا آدمی ہے، شاید یہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، شاید یہ کوئی اور ہے۔ اب تب اس کو میرے کزن نے بتایا کہ نہیں یہ بھی روم میٹ ہی ہے آپ کا، آپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ تو یہ بھی اسٹوڈنٹ ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، یونیورسٹی پڑھتا ہے، ابھی اس کا پہلا سیمسٹر ہے۔ یہ آج سے 3-4 سال پہلے تقریباً اس وقت کی بات ہے۔ اچھا، تو وہ ایک الگ ہی فلم تھی، اور وہ خواجہ صاحب تھے ان کا نام۔ تو ان کی جو وہ ہر کام جو ہے وہ ماں باپ کے کچھ خاص لاڈلے تھے، ہر کام جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے پوچھ کے کرتے تھے۔ اب خواجہ صاحب نہانے جا رہے ہیں تو ماں سے پوچھ کے جا رہے ہیں، اماں کیڑی پینٹ پاواں، اماں کیڑی شرٹ پاواں۔ اب اگر خواجہ صاحب نہا کے آ گئے ہیں تو اماں میں نہا کے آ گیا ہوں، اماں میں یہ کر رہا ہوں، اماں میں یہ کر رہا ہوں۔ اب اس کے گھر میں یہ تھا کہ شاید اماں کی حکومت تھی، اماں کی جو ہے وہ اجارہ داری تھی گھر میں، اس کا باپ تو ویسے فضول تھا مجھے لگتا ہے، کیونکہ وہ باپ کی تو کوئی بات کرتا ہی نہیں تھا، نہ مانتا۔ جب وہ کال کرتا تھا یا تو اماں کو کرتا تھا بات، اماں کی ہی کال آتی تھی، اماں ہی کی بات ہوتی تھی اس کے منہ سے۔ کھانا کھا رہا ہے تو اماں میں کھانا کھا رہا ہوں، میں یہ کھا رہا ہوں، میں پانی پی رہا ہوں، میں نے پانی پی لیا ہے، میں گلاس رکھ رہا ہوں، میں نے گلاس رکھ دیا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے ہاسٹل میں، جو نارمل ہاسٹل ہوتے ہیں جہاں پہ جو رومز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں جو بیڈ وغیرہ ہوتے ہیں، جو بستر آپ کا جو ہوتا ہے وہ نیچے زمین پر ہی ہوتا ہے، زمین پر میٹرس بچھا کے تو اوپر بستر رکھ لیتے ہیں اپنا، ساتھ جو ہے وہ پھر جو بیگ وغیرہ رکھنے کی، سامان وغیرہ رکھنے کی جو ہے جگہ وہ مینیج کر لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ تھا کہ جو میرا وہ بستر تھا، یہ اس طرح ترتیب تھی کہ پہلا میرا بستر تھا ساتھ میں، اور بیچ میں خواجہ کا بستر تھا، پھر آگے جو ہے وہ آدمی بھائی کا بستر تھا۔ تو وہ کیا کرتا تھا جب بھی وہ سوتا تھا تو دوسری طرف سائڈ پہ وہ جو ہے وہ کر کے منہ کر کے سوتا تھا۔ اب سونا تو ہم نے تینوں نے اکٹھا ہی ہوتا تھا۔ اب اس کو پتہ نہیں ایک ڈر تھا یا خوف تھا یا کیا تھا، وہ آج تک مجھے نہیں پتہ چل سکا۔ تو خیر جو بھی تھا، اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی کام کرتا، اس کی جو ہے وہ ماں باپ اس کے ساتھ ہوتے۔ امی میں نہانے جا رہا ہوں، امی میں کھانا کھانے جا رہا ہوں، امی میں نے کھانا کھا لیا، امی میں سونے جا رہا ہوں، امی میں سو گیا ہوں، امی میں نے آنکھ بند کر لی ہے، امی اب میں اٹھ گیا ہوں، امی میں نے اب نہا لیا ہے، اب میں تیاری کر رہا ہوں اور میں یونیورسٹی جا رہا ہوں۔ تو اس کا تھوڑا یہ کوئی سین تھا، ممی ڈیڈی والا سین تھا، یا اس کا وہ جو ہے کہ وہ اکلوتا تھا اپنے ماں باپ کا، اس کا شاید یہ والا کوئی سین ہوگا، یا اس کے علاوہ وہ جو ہے اس کے ماں باپ جو ہے اس کی زیادہ کیئر کرتے ہوں گے، یا کبھی اس کو گھر کے باہر بھیجنا ہوگا، یا یہ ہے کہ ایف ایس سی کے بعد کیونکہ وہ 4 سال کی ڈگری کے لیے شہر سے باہر رہ رہا تھا پہلے میں، تو شاید اس کے لیے وہ تھا۔
लेकिन यार रह तो हम भी रहे थे, हमारे माँ बाप ने इतना वो हमें नहीं फोर्स किया, इतना हमारा वो ख्याल नहीं रखा। तो वो बल्कि वो जब भी हम कॉल करते थे वो सोचते थे कहीं पैसे ना मांग लें, छोड़ो पर रहने दो। तो खैर वो इस लिहाज से वो पैसे भी ज़्यादा लेके आता था अपने घर से, बल्कि उसको कुछ शय चाहिए भी होती थी तो वो और भी मंगवा लेता था। बाप उसका बड़ा वहमी था। ख्वाजा कभी कोई चीज़ मंगवाने की कोशिश भी करता, ज़्यादातर अगर वो एक्स्ट्रा कुछ मंगवाने की कोशिश करता कोई अपने खर्चे के लिए, तो ना ये दिल करा ये चीज़ ले लूँगा, वो मंगवाने की कोशिश करता तो उसका बाप एग्जैक्ट वही चीज़ भेज देता बजाय पैसे भेजने के। उसके माँ बाप भी बहुत बड़ी फिल्म थे। खैर भाई एक दिन ये हुआ कि हम जो है वो हॉस्टल में थे, रात रुके हुए थे। रात को दिसंबर की एक रात थी, काफ़ी सर्दी थी उस दिन, धुंध भी थी काफ़ी। तो जो मेरे रूममेट्स हैं, और आदमी भाई था, उसने कहा कि वो तकरीबन अपने वो जो है वो घर गया हुआ था, मैं था, वो वही ख्वाजा था, और बाकी मेरे कज़न थे दूसरे रूम में। तो हम जो है वो इकट्ठा जो है खाना खाते थे, खाने का टाइम जब भी होता था हम इकट्ठे ही खाना मंगवा लेते थे, खा लेते थे। तो एक दिन भाई ये सीन बना के मैंने उनसे कहा कि आप जो है ये कर लें कि आप हमारे लिए खाना ले आएं, तो हम आपका इंतज़ार कर लेते हैं। मेरी बाइक में जो पेट्रोल नहीं था, मैंने कहा यार मैं आते हुए मेरी बाइक के लिए पेट्रोल भी लेते आना। तो खैर वो चले गए। तो जब वो चले गए तो मैंने उनसे कहा कि यार जो भी उन्होंने कहा भी आपके लिए क्या लेंगे, मैंने कहा जो भी दिल करे आप ले आना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हमें एक दो काम है, हम पहले वो करते हैं। कुछ उन्होंने ख़रीदारी करनी थी अपनी, कोई उनके लिए यूनिवर्सिटी में कोई इवेंट था, वो किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कोई इवेंट था तो उन्होंने उसकी तैयारी भी करनी थी, कोई शॉपिंग वगैरह करनी थी। उन्होंने कहा भी आते हैं हम खाना लेके आएंगे, हमने कहा ठीक है। अब वो जो ख्वाजा था वो भी उनके साथ था, एक और मेरा कज़न था वो भी उनके साथ था, एक और कज़न था, यानी कि दो मेरे कज़न थे, एक ख्वाजा था, एक और बंदा उनके साथ था। वो अपनी बाइक लेके चले गए। अब सर्दियाँ थी, तो जैसे ही वो बाइक लेके गए हैं, बाइक ले जाने के बाद थोड़ी देर बाद उनका एक्सीडेंट हो गया, किसी ऑटो में लग गए वो बेचारे। अच्छा हम मज़े से बैठे हैं, मैं एक और मेरा कज़न जो है वो हम हॉस्टल में थे, हम ठहरे हुए थे, हमने कहा चलें ठीक है खाना आ जाएगा तो फिर खा लेंगे। तो हमें 2-3 घंटे बाद मैसेज आता है कि आप जो है वो फलां हॉस्पिटल पहुँचे, जो कज़न थे वो जो मोटरसाइकिल पे गए थे उनका एक्सीडेंट हो गया। अब वो हम सेम हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो आगे जो है वो कज़न को, जो मेरा कज़न मोटरसाइकिल चला रहा था उसको ज़्यादा चोटें आई थी, बाकी जो हमारे ख्वाजा साहब थे उनको कम चोटें आई थी, वो बिल्कुल नॉर्मल थे। तो अगले दिन 1-2 दिन बाद जो है वो अपना क्या कहते हैं, उनको उनके माँ बाप को पता चला, ख्वाजा साहब के माँ बाप को पता चला, उनके माँ बाप हॉस्टल में आए। तो ख्वाजा को कहते हैं कि तू यहाँ से डिग्री छोड़ दे, तो यहाँ तूने अकेला नहीं रहना, यहाँ जान को खतरा है, यहाँ लोग अच्छे नहीं हैं, यहाँ जो तो तुम्हारी जो है वो रूममेट्स हैं वो सही नहीं है, रातों को तुझे बाहर लेके निकलते हैं, बाइक पे लेके निकलते हैं, तुझे तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी तेरा एक्सीडेंट हुआ है, तू बच गया, अल्लाह का शुक्र है ये वो। तो खैर भाई वो करते कराते जो है वो वहाँ से चला गया। लेकिन वो इतना वहमी था कि उसके माँ बाप जो है 1 महीने में 1-2 दिन चक्कर लगाते थे हमारे हॉस्टल का। जब भी देखते फैमिली आई बैठी, हाँ भी कौन आया बैठा है, ख्वाजा साहब के घर वाले आए बैठे हैं, ख्वाजा साहब की अम्मी आई बैठी हैं। उसकी अम्मी भाई कोई अपना सरकारी टीचर थी भाई, कोई अच्छी खासी उसकी तनख्वाह थी, वो ख्वाजा को अच्छा खासा खर्चा देते थे। बाप जो वो बोलता नहीं था, क्योंकि बाप जो है वो उसकी माँ के मातहत था शायद, तो या शायद कोई और मसला था। तो खैर इस तरह ये हमारा सीजन चलता रहा, लेकिन फिर वो जो है वो हॉस्टल छोड़ के चला गया था। फिर जो है वो जब, लेकिन जब तक वो वहाँ रहा हमारे साथ, उस वक्त उसकी माँ आती रही, उसके माँ बाप विजिट करते रहते थे, पूछते रहते थे तेरे रूममेट्स कैसे हैं, तुझे तंग तो नहीं करते, आलमी भाई कैसा है, उसका सलूक कैसा है, इसका अमजद का सलूक कैसा है तेरे साथ, और जो रूममेट्स हैं वो जो दूसरे रूम वाले हैं वो कैसे हैं, और जो हॉस्टल का वो जो वार्डन है वो कैसा है, और उसका मालिक मकान वो कैसा है तेरे साथ, खर्चा तेरा पूरा होता है नहीं होता है, कैसी चीज़ें खाता है। भाई वो 1 महीने में 2-3 बार आते थे और सारे उससे तफसील लेते थे। तो वो ये भी एक एक चीज़, जैसे वो सबक नहीं पढ़ते बच्चे स्कूलों में छोटे, तो वैसे सबक पढ़ता था उनके सामने, बताता था उनको आके। खैर वो तो हो गया सिस्टम जो होना था। ख्वाजा साहब छोड़ के हमें चले गए उस वाक़े के बाद, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। फिर मैं और जो आदमी भाई थे वो रह गए थे। खैर आदमी भाई का और मेरा जो है वो रिश्ता एक भाइयों वाला बन गया था। जो हमारा जो दुख सुख था वो भी साझा था। अक्सर वो जो इंडिया का एक गाना था,
तेरे नाम, वो हम सुना करते थे रात को। रात को वो हम उसके पास, आदिम भाई के पास स्पीकर्स होते थे, वो उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके वो गाना लगा देता था। वो अपनी याद में मगन हो जाता, मैं अपनी याद में मगन हूँ, वो सारी रात वो गाना चलता रहता था। मतलब ये इमेजिन कर लेंगे, सर्दियों की शदीद रात होती थी, धुंध होती थी बाहर, बाद कल बारिश भी हो रही होती थी, अंदर सख्त मौसम होता था। वो माल के मकान से छुप के हीटर भी चलाता था आदमी भाई। हीटर आता कि हमारे माल के मकान में हमें मना किया हुआ था कि हीटर नहीं चलाना आप लोगों ने। तो खैर वो हीटर चलाया करता, तो उसके ने कहा कि मैं तो नहीं रुकूंगा। वो हीटर भी चलाता था, तो हीटर भी चल रहा होता था, वो गाना भी चल रहा होता था, हम अपने अपनी याद में मगन होते थे। आता कि पता भी था कि सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है, यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स भी हैं, प्रेजेंटेशंस भी हैं, क्विज भी हैं, और बहुत सारे कुछ भी हैं, लेकिन वो भी फिर भी वो उसको चलाता था। हम तकरीबन रात के 12-1 बजे तक वैसे उसको गाने को सुनते रहते थे। लाइट हमारी ऑफ कर देते थे हम, डिम सी लाइट वो जो है वो जलती रहती थी, वो गाना चलता रहता था। रात को फिर 1-2 बजे वो गाना कभी हम उठ के बंद कर देते थे, सो जाते थे, नहीं तो वो सुबह तक चलता ही रहता था। हीटर भी सुबह तक चलता रहता था छुप छुप के माँ के मकान से। खैर वो भी सिलसिला चलता रहा। फिर जो है वो विंटर सीजन जो है वो ख़त्म हो गया। फिर मैं घर आ गया। फिर लेकिन जो आदमी भाई था वो वहीं रह गया, फिर मेरे दूसरे कज़न भी वहीं रह गए। उनमें से फिर एक कज़न की जो है वो स्टडीज़ कंप्लीट हो गई थी, वो फिर लाहौर चला गया। उसके बाद जो मेरा एक एक कज़न रह गया था, और वो आदमी भाई रह गया था। या एक और था शेख साहब हमारे, उनका फिर किसी और वीडियो में जिक्र करेंगे आपके साथ। तो बाकी जो रूममेट्स है, बाकी जो मेरे कज़न हैं, उनका भी आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो जो है आज़िम भाई के साथ मेरे जो है जो हॉस्टल का सफ़र था बड़ा अच्छा था। हम अक्सर ही रात को 12 बजे, 12:30 बजे रात को, दिसंबर की यख ठंडी यख बस्ता रातों में हम जो है वो मुल्तान के जो चंगरेला पर जो है वो आइसक्रीम खाने जाते थे रात को। शर्त लगा के जाते थे कि किसी की तबीयत तो नहीं ख़राब होगी रात के दिसंबर की सख्त सर्दी रात को 12:30 बजे आइसक्रीम खाने में। तो बाद को वो एक कज़न था छोटा हमारा, वो भी हमारे साथ जाता था। तो आज़म भाई के साथ मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं, क्योंकि वो जो रूम था हमारा वो 3 आदमी का था, क्योंकि ख्वाजा साहब तो वहाँ से जा चुके थे, तो बाकी मैं और आदमी भाई रह चुके थे। तो आदमी भाई के साथ मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, अपने दुख सुख बड़े अच्छे गुजरे। वो कोई मेरी चीज़ उसको चाहिए होती तो वो ले लेता था, मुझे उसकी कोई चीज़ चाहिए थी तो वो मैं ले लेता था। तो इस तरह ये रोटेशन चलता रहता था। खाना पीना भी हमारा एकदम एकदम इकट्ठा एक साथ ही होता था, एक साथ ही जाते थे, एक साथ ही आते थे। जो वो सारे दिन की रूटीन होती थी यूनिवर्सिटी में उसकी, वो मुझे बताता था। मेरी जो रूटीन थी वो मैं शेयर करता था, क्योंकि हम एक रूम में फिर हम अ, दोनों जो है वो तकरीबन 2-3 महीने एक साथ रहे। तो जो हमारी रूटीन थी वो हमारी हम एक दूसरे से शेयर करते थे, एक दूसरे से हम भाइयों की तरह बन गए थे। बाकी भी हमारे जो रूममेट्स थे, जो हमारे हॉस्टल के साथी थे, वो दूसरे रूम में थे। दूसरा रूम ज़्यादा दूर नहीं था, साथ ही था, लेकिन जो है वो उनके कब हम कभी उनके रूम में चले जाते थे, वो अक्सर हमारे रूम में आ जाते थे। तो इस तरह ये शुगर मेरा लगता ही रहता था। तो ओवरऑल जो मेरा यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल लाइफ थी जो मेरी, वो बड़ी अच्छी गुजरी। गो कि मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में तो नहीं रहा, लेकिन जो वो बाहर वाले हॉस्टल होते हैं जो शहरों में होते हैं, तो वहाँ पे रहा। मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, यानी कि बहुत ज़बरदस्त था। जो असल हॉस्टल वाला एक्सपीरियंस होता है बंदे का, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। और जो हमारा जो मालिक मकान था, या जिसका वो हॉस्टल वाला था, जो जिसके जो मैं हॉस्टल की जिम्मेदारी थी, वो भी एक बड़ी पहुंची हुई हैसियत है। उसका भी जिक्र करेंगे आप किसी और वीडियो में। उसको हम जनाब कहते थे प्यार से। वो जब भी कोई बात करता था तो जनाब जनाब करके कहता था, जनाब हम जैसा है, जनाब आदमी भाई। तो ऐसे वो ऐसे बात करता था, वैसे बोलता था, तो हमने उसका नाम ही जनाब रख दिया था। तो उसके साथ हमारे काफ़ी जो है वो अख्तिलाफ़ात भी रहते थे, काफ़ी धमा हम उसने उसको चिढ़ाया भी करते थे, उसके साथ मजाक भी किया करते थे। और उसके हॉस्टल में कोई कैद नहीं थी, चाहे रात के 12 बजे आओ, चाहे 1 बजे आओ, 2 बजे आओ, चाहे ना आओ, चाहे तुम पड़े रहो, चाहे कभी ना आओ, लेकिन उसको सिर्फ किराए की गर्ज थी। वो महीने के दिन आपसे किराया मांगने आ जाता था, बस उसके अलावा नहीं आता था। हाँ, उसके अलावा हमारी जब भी कभी वाईफाई ख़राब हो जाती थी, या हमारे हॉस्टल का कोई काम हो जाता था, पानी का मसला हो जाता था, कभी इलेक्ट्रिसिटी का कोई मसला हो जाता था, तो वो हम उसको कह देते थे। या कोई दरवाज़ा वगैरह ख़राब हो जाता है, खिड़की वगैरह ख़राब हो जाती, तो हम उसको कह देते थे कि वो सही करवा दे। लेकिन उसने एक चीज़ सही नहीं करवाई थी कभी भी। जो हमारे जहाँ रूम था हमारा, उसकी एक जो है वो खिड़की ख़राब थी। तो जब भी हम उसको कहते कि यार ये जनाब ये सही करवा दो, वो उस खिड़की में सिर्फ एक गत्ता लगा देता था, बजाय उसको सही करवाने के।
वो जब तक वो गत्ता वहाँ रहता थोड़ी बहुत तो सुकून रहता, जैसे वो वहाँ से हट जाता वो फिर सर्दी वहीं से फिर से आने लग जाती। खैर बाद में हमें आदत हो गई थी, हम चुप करके वहाँ रहने लग गए थे। तो ऐसा ऐसा फिर जो हमारा टेन्योर था वो, फिर मैं तो छोड़ गया था हॉस्टल, ख्वाजा साहब वैसे ही छोड़ गए थे। फिर उसके बाद आंधू भाई रह गए थे, शेख साहब रह गए थे और मेरा एक कज़न रह गया था, क्योंकि मेरे दो कज़न तो वैसे ही चले गए थे। उनमें से मेरा एक कज़न था जो मेरे ही डिग्री का सीनियर था, उसका एक साल वैसे ही ख़त्म हो गया था, उससे वो पहले वो चला गया था। तो बाकी जो मेरे कज़न्स हैं, रूममेट्स हैं, बाकी जो हॉस्टल लाइफ की जो बाकी हैं वो एपिसोड है वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।